So we'll continue with the same topic, that is the financial statements of a company. इसमें हमने दो स्टेटमेंट्स, दोनों का मीनिंग और दोनों का फॉर्मेट वगैरह हमने कर लिया। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट थी पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। उसमें हमने मेन हेड सब हेड्स कर लिए। उसके बाद हमने सेकंड स्टेटमेंट की जो थी वो हमने कल स्टार्ट करी थी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका हमने सारा जो था वो फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था। अगेन फीचर्स वही हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन केस ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, इट इज नोन एज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, विच इज इनकम स्टेटमेंट, है ना। दोनों में इनकम स्टेटमेंट ही होती है, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। नेम चेंज कर देते हैं। सोल ट्रेड में इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। In case of partnership also it is profit and loss account, but in case of company form of business, it is not profit and loss account, it is profit and loss, it is statement of profit and loss. It is statement of profit and loss account, prove me wrong. In case of company form of business, it is statement of profit and loss account, prove me wrong, Mitali. Yes, Mitali. Prove me wrong. I am saying in case of company's form of business, income statement is known as statement of profit and loss account. Manya. Sir, in case of company, it is statement of profit and loss, not account. It is not an account, it is a statement. It is a statement. Very good, Manya. It is a statement, it is not an account. Either it can be a statement or it can be an account. It is a profit and loss account in case of sole trade and partnership form of business, but in case of company's form of business, it is statement of profit and loss. Second feature is it is prepared in dash form. Dash form, Himani. Vertical form. It is again prepared in vertical form like position statement. And while preparing in vertical form, the columns are, first column is particular. After that, name the column, Aditi. Next column is Note number. note number. Then next column. And Next column is current year, Current year amount amount. and previous year. and then previous year. ऐसे ही, ठीक। जो यहाँ पे मेन डिस्कशन हमने कल करी थी, that was about credit side of profit and loss account, means income side. Into how many parts we can divide the incomes, revenues of a business? How many parts, Ketan? The two parts, Two parts, namely RFO and other incomes. RFO and other income. One is RFO and second is other income. जब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, it becomes total revenue. Total revenue. What is the difference between RFO and other income? Anybody else? Vanshita, like it. Vanshita, good. Sir, RFO is the Sir, RFO is the revenue from the sale of the goods, and other incomes like selling of any asset or anything else. गुड ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। वंशिता, स्टेप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। RFO is the revenue generated from the main activities of business, for example sale of goods and rendering of services. Revenue generated from मेन एक्टिविटीज कौन सी हैं? जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज है, रूटीन एक्टिविटीज हैं। एक स्टेशनरी, फिर एग्जांपल सेम है, स्टेशनरी वाले पर्सन के लिए स्टेशनरी आर्टिकल सेल करना वो मेन एक्टिविटी है। फर्नीचर वाले के लिए सोफा सेट, बेड वगैरह बेचना, वो टेबल चेयर बेचना, वो एक जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी है, रूटीन बिजनेस है उसके लिए। अपने मशीनरी वाले के लिए मशीनरी सेल करना वो रूटीन एक्टिविटी है। दैट रियल एस्टेट कंपनी के लिए या प्रॉपर्टी डीलर के लिए लैंड बिल्डिंग वगैरह सेल करना या रेंट पे देना, उसको वो उसका जो है वो मेन एक्टिविटी है। तो इसमें वो एक्टिविटीज आएंगी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है बिजनेस की, रूटीन एक्टिविटीज। इसके अलावा बिजनेस कहीं से भी और इनकम जनरेट कर रहा है, कहीं से भी और कर रहा है, दैट इज अदर इनकम अदर देन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक स्टेशनरी वाले पर्सन के लिए रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग इज अदर इनकम।
एक स्टेशनरी वाले पर्सन के, एक बिल्डिंग वाले पर्सन ने प्रॉपर डीलर के लिए इन्वेस्टमेंट करी थी, वो उसने प्रॉफिट पे सेल कर दी, अदर इनकम। इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था वो उसने सेल किया, प्रॉफिट हुआ, अदर इनकम। जो हमारा बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो RF को, इसके अलावा कुछ भी हो वो अदर इनकम। फाइन, ये आपकी क्रेडिट साइड है। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बना रहे थे +1 में, क्रेडिट साइड जो है आपकी वो सारा इसमें आ जाएगा। देन एक्सपेंसेस विल बी देयर। एक्सपेंसेस में फर्स्ट एक्सपेंस कौन सा था, फर्स्ट आइटम कौन सी थी मानिया? Cost of material consumed. Cost of material consumed. Who can tell me how the cost of material consumed can be calculated? How it can be calculated? Chahat? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसे कंप्लीट कौन करेगा? चाहत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स It is opening plus stock of raw purchase. material plus purchase of raw material plus minus closing stock of raw material. Here we are talking about only raw material. अगर हम ये कहेंगे ना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, आंसर विल बी इनकम्प्लीट। पता नहीं चल रहा है ना, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहे हैं या फिनिश्ड गुड्स की बात, पता नहीं चल रहा। तो हमें बताना पड़ेगा व्हेन वी आर सेइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इट मींस इट इज कॉस्ट ऑफ ओनली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। देन सेकंड एक्सपेंस कौन सा था आपका? किसी को नहीं याद? संयम? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कौन सा था? ये ऐसे ही दिया होता है आपको, ये कैलकुलेट नहीं करना होता, ये आपको ऐसे ही दिया होता है। थर्ड कौन सा था? वो लंबा सा था जो 2 लाइन में लिखा हुआ था, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी। देखिए सानिया। Change in inventories of raw material, work in progress and stock in trade. रॉ मटेरियल नहीं सानिया, रॉ मटेरियल ऊपर आ गया है बेटा। जब हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाला ना तो उसकी चेंज इन इन्वेंटरी आ गई है। चेंज इन इन्वेंटरी फाइंड कैसे करते हैं? दिखाया था मैंने फार्मूला कल आपको, चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ दिस दिखवाया था। क्या था फार्मूला? वो फार्मूला क्या था? हर्षिता? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ये फार्मूला था सानिया। अभी आपने कहा चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल भी लिया आपने, इससे ऊपर जब आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाला सानिया, फर्स्ट पॉइंट में एक्सपेंसेस में निकाला, कहीं उसमें कहीं आया ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी? वो होगी एडजस्ट बेटा, ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग, वो हो गई। यहाँ रॉ मटेरियल की नहीं लेनी, यहाँ बाकी तीनों की लेनी है। एक्सप्लेन करिए दोबारा इसको सानिया। चेंजेस इन द Change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade. एंड स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल ठीक है। चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। चेंजेस इन द इन्वेंटरीज, तीनों की इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी करके जो होगा वो आ जाएगा। अगर ओपनिंग इन्वेंटरी है 10 रुपीज, क्लोजिंग है 7 रुपीज, व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस? इट विल बी रुपीज कितने? बोल दीजिए ऐसे ही। 3. 3, yes, it will be 3. Fine. In case this is the case, then अब क्या होगा? अब क्या हुआ? अरे प्लस माइनस तो कर दो, मैथ्स तो कर लो, अकाउंट तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको। -7 -7 आ गया, या तो -7 आ गया। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम यहाँ जैसे पहले आ रहा है 3 ऐसे लिख देंगे, अगर वो नेगेटिव आया उसको ब्रैकेट में शो कर देते होते हैं, माइनस में शो कर देते होते हैं। ये हम पहले भी आई फील अपने 11th में मैंने कहीं बता दिया था आपको कि ब्रैकेट वाली फिगर माइनस वाली फिगर होती है, कहीं ना कहीं आया हो। जो नहीं किया है तो अब आ गया। जब आप यहाँ लिखोगे चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ दैट फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, -7 माइनस ऐसे आपने शो कर देना। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या था प्रभजोत? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये कौन से होते हैं प्रभजोत? एग्जांपल सैलरीज, वेजेस, सैलरीज, बोनस। वेजेस, सैलरीज, बोनस एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। फाइन, गुड। इसके बाद कौन सा था?
काशवी, Finance costs. फाइनेंस कॉस्ट, इसमें क्या आता है बच्चे? Premium on redemption of debentures and interest paid on borrowings. Yes, mainly it is interest on long term borrowing, interest on debentures, interest on bank loan वगैरह, right? और and include also premium on redemption of debentures. Then बैंक चार्जेस भी है ना, बैंक चार्जेस भी लिखी है ना आपने, होते हैं इसमें? नहीं होते, क्यों नहीं होते? Other expenses. अदर एक्सपेंसेस में तो आते हैं, होते क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन था होते क्यों नहीं, आप क्या अदर एक्सपेंसेस में आते हैं? क्योंकि वो जो बैंक का, अब मैं पूछता हूँ कहाँ आते हैं, अब आप बताना कि क्यों नहीं होते, ऐसा ठीक है सर क्योंकि वो जो है जो बैंक सर्विस के लिए। हाँ जी केतन, बोलो बोलो बोलो। सर वो जो बैंक सर्विसेज देता है हमें, उसके लिए वो लेता है चार्जेस, It is not वो bank. मतलब हमारी परचेज करने के बीच में नहीं आते। एग्जैक्टली, मतलब परचेज या फिर मैं गुड फिनिश करने के लिए नहीं आते। मैं समझ गया केतन, मैं समझ गया हूँ केतन। These are the charges which are given to the bank for the services availed from the bank. जबकि हम वहाँ क्या लेते हैं, हम वहाँ पर लेते हैं जो बैंक को हमने इंटरेस्ट दिया है या डिबेंचर के अगेंस्ट हमने इंटरेस्ट दिया है, मींस जो हमने फाइनेंस अरेंज किया है उसके अगेंस्ट जो हम पैसे पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और एनीथिंग एल्स, वो जो है वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। बैंक चार्जेस जो है पैसा अरेंज करने के लिए नहीं हो रहा है, बैंक चार्जेस जो है वो हम सर्विसेज ले रहे हैं बैंक की, उसका हो रहा है। फॉर एग्जांपल कलेक्शन चार्जेस है ना, बैंक हमारे बिहाफ पे चेक कलेक्ट कर रहा है और हमें वो डेबिट कर रहा है किसी अमाउंट के लिए, वो बैंक चार्जेस है, वो यहाँ फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो बैंक चार्जेस जो है वो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या था इसमें हिमानी? Depreciation expenses and amortization expenses. Depreciation and amortization, you know depreciation is charged on intangible assets and amortization tangible assets. ठीक है, ठीक है, ये काशवी गलत है, ये मार रहे हो। काशवी ने कहा यस सर, काशवी प्रूव करो मेरे को रॉन्ग। सर डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होती है, फिक्स्ड एसेट्स पे होती तो है। मैंने गलत कहा और बेटा, आपने मीनिंग बता रहे हो, मैंने क्या गलत कहा? सर आपने कहा कि डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल पे होती है और अमोर्टाइजेशन टेंजिबल पे होती है। मैंने कहा और आपने भी कहा यस सर ऐसे ही होता है, क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने पहले कह दिया ना, यू नो कि इट इज ऑन टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल, आपने कहा हाँ जी सर वी नो दैट डेप्रिसिएशन इज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन इज ऑन टेंजिबल एसेट्स, है ना, यू नो। सो डेप्रिसिएशन जो है दैट इज ऑन tangible assets, yes, and amortization is on intangible assets, ऐसे होता है। दोनों यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख देने, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हैं, गिव मी एनी 5 अदर एक्सपेंसेस एग्जांपल 1 by 1, एक अदिति बोलेगी एग्जांपल ऑफ अदर एक्सपेंसेस, कैरेज, दैट्स ऑल। ओके, सेकंड हर्षिता, Freight inward. फ्रेट, थर्ड काव्या, सैलरी। हाँ जी सैलरी सर। सैलरी बेटा, सैलरी इज देयर काव्या इन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट वहां पे। और कोई बोलिए काव्या, एक कैरेज बोल दिया गया। हाँ जी, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, गुड। और कनिका, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। प्रभजोत, वन मोर। Rent paid, bills paid. देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस, ऊपर तो बहुत थोड़े आ रहे हैं, बाकी सारे अदर्स में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेंसेस सारे जो हैं वो करने के बाद आपका ये टोटल एक्सपेंस आ जाता है। टोटल एक्सपेंस में को जब हम माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू से, तो क्या आता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट Before tax. Why is it profit before tax? What is the meaning of this profit before tax? Before word लगा, इसका मतलब क्या है केतन? सर इसके बाद हमने टैक्स अप्लाई करना होता है जो परसेंटेज दी होती है, मतलब ये कि अभी टैक्स माइनस नहीं किया हुआ, प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ टैक्स, माइनस टैक्स, देन विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, ओके। जो आपने क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ कल वाला रिपीट ही किया है। जो आपने क्वेश्चन मैंने बोला था 31 से लेकर और 38 तक कर लेना, क्या वो आपने किए, कर लिए? उसमें कोई प्रॉब्लम? एक हमने सेल ऑफ स्क्रैप वाला पॉइंट कर लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो किसी को? कोई नहीं आई? एंड एक हमने जो एक्सपेंस साइड पे यहाँ पे आइटम नंबर 3 है या 3 है, चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, है ना। अगर तीनों की इन्वेंटरीज अलग अलग दी गई हो तो तीनों की चेंज अलग निकाल के कंबाइंड चेंज, नेट चेंज भी निकालनी है, लाइक सम नंबर 35। अगर आप देखो तो सम नंबर 35 पेज नंबर 1.68, he says from the following information of Hospitality Limited for the year 31st March 2020, calculate the amount that will be shown in the notes to accounts on changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade। आपको तीनों की ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, और हमने जो यहाँ पे लिखनी होती है वो कंबाइंड लिखनी होती है। ये नहीं लिखना है आपने चेंजेस इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंजेस इन द इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड देन वर्क इन प्रोग्रेस। हमारे पास अमाउंट एक आनी चाहिए। सभी में हम ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा उससे जो नेट आएगा तीनों को दोबारा प्लस माइनस करके वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग कितनी है, क्लोजिंग 5 लाख ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना आ गया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 50,000, नेट 50 आ गया, नेट चेंज इज माइनस 50। so it is in case of finished goods 50,000 negative, then similarly work in progress 450 minus 425, work in progress का 25,000 का पॉजिटिव, एंड देन है आपका स्टॉक इन ट्रेड का 650 माइनस 6 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 50,000 का पॉजिटिव। तो नेट चेंज आपका आ गया 25,000। ये 25 यहाँ पे लिखी जाएंगी एंड दिस विल बी शोन एज अ वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। उसका फिर नोट नंबर यहाँ डाल के ये फिगर्स वहाँ पे दिखाई जाएंगी। हमने 3 आइटम नहीं दिखानी है, हमने आइटम एक ही दिखानी है, उसकी जो कैलकुलेशन है दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। आई होप आई एम क्लियर, है ना। एक इसी में ही पॉइंट है सम नंबर 31 में सेल ऑफ स्क्रैप, ये हमने कल डिस्कस किया था। ये आपने कहाँ लिया सेल ऑफ स्क्रैप को केतन? RFO। क्यों? तो क्योंकि जो स्क्रैप था वो बिजनेस के मतलब जो उसने परचेज की थी गुड्स बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उसी को बेचा है। फिर ऐसा है 32nd सम में क्यों नहीं लिया आपने, वो कहाँ लिया है सेल ऑफ स्क्रैप सम नंबर 32? क्योंकि वो फाइनेंशियल कंपनी है। यस, जो पिछला आंसर था वो आपका थोड़ा वेग सा था, आंसर 31 में वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी थी, उसका आंसर ये था इट इज नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी मींस वी अज्यूम कि इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, उसका स्क्रैप क्या होगा, पेपर वगैरह ही होंगे। इसीलिए वो जो कंपनी फाइनेंस कंपनी का जो सेल ऑफ स्क्रैप है दैट हैज बीन टेकन इन द अदर इनकम। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल ऑफ स्क्रैप इज देयर इन RFO, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओनली। ठीक है ये बात, फाइन। सो बाकी जो सारा कुछ जो है वो इस टॉपिक में तो सारा ही क्लियर ही है। कुछ मैं आपको और लिखवा रहा हूँ, वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर जो नए वाला है वो हम मंडे स्टार्ट करेंगे। सर हाँ जी बेटा। सर 36 सब में जो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस है ये नहीं ना आने इसमें। सब नंबर 36 एम्प्लॉय बेनिफिट निकालने को बोला, नहीं आएंगे बच्चे। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, हाँ जी हमने इसमें एंड में नोट लिखना है फिर कि ये चीज नहीं आएगी। हाँ जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, विल नॉट बी इंक्लूडेड। बिल्कुल ठीक। Then is okay, tell me the schedule and part of Companies Act 13 by which balance sheet is prepared. Anybody else?
schedule part dash of schedule dash of Companies Act. Kanav. Schedule 1 from part 2 Companies Act 2013. इसको ठीक कौन करेगा? पहले बच्चे पार्ट आना है, बाद में शेड्यूल आना है। चेतन, सॉरी कनव, तमन्ना, ठीक करना बेटा इसको। Sir, part 1 and schedule 3. Yes, it is part 1, schedule 3, balance sheet. Kanav, ठीक है? Now Kanav, what is the difference between this part dash schedule dash in case of balance sheet and in case of statement of profit loss? कहाँ चेंज करोगे आप? उसका मतलब सिंपल सी बात करूँ, उसका पार्ट और शेड्यूल कौन सा है? बैलेंस शीट का तो पार्ट 1 शेड्यूल 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पार्ट कौन सा है और शेड्यूल कौन सा है? कनव, संयम, सर पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। यही पे चेंज है बस, और कोई चेंज नहीं। बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 शेड्यूल 3 रहेगा, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। फाइन, ओके। इन ए कंपनीज बैलेंस शीट, सुनना क्वेश्चन, इन ए कंपनीज बैलेंस शीट dash appear under the head non current assets. The options are MCQA. The options are goodwill, patents, vehicles, or all of the above. Dash appear under the head non current assets, goodwill, patents, vehicles, and all of the above. 1, 2, 3. Himani. Sir, all of the above. All of the above, yes. So नॉन करंट एसेट्स के बारे में बात करी, इसने टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में बात नहीं करी। गुडविल हो, पेटेंट हो, व्हीकल्स हो, ऑल आर पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओनली। कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर डैश। कॉल्स इन एडवांस, मेन हेड सब हेड बता दीजिए। चलो 1, 2, 3, 4, anybody else? 5, 6. मिताली, Main head current liability, sub head other current liability. ये हमने पॉइंट कल किया था बेटा, आपको आता होना, सबको आता होना चाहिए था। Why only 6 hands were up? तो हमने कल किया। Calls in advance, main head current liability, sub head other current liabilities. What about calls in arrears? हर्षिता, सर इसका मेन हेड है शेयर होल्डर फंड्स एंड सब हेड शेयर कैपिटल, फिर ब्रैकेट में माइनस का साइन। वेरी गुड बेटा। इट इज शोन बाय वे ऑफ रिडक्शन फ्रॉम सब हेड शेयर कैपिटल एंड मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। गुड। व्हाट अबाउट शेयर फॉरफीचर अकाउंट? इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट बोल देते हैं, इसको फॉरफीटेड शेयर अकाउंट बोल देते हैं, एक ही बात है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट। Anybody else? Kanika. Main head shareholders fund and sub-head share capital in bracket addition का sign. Addition का sign भी वो आपको समझाने के लिए बताया था। Plus. It is shown by way of addition in share capital. Main head shareholders funds, sub-head share capital shown by way of addition in the share capital. ठीक है, ब्रैकेट में प्लस का साइन नहीं, इट इज टू बी एडेड। ठीक है, फाइन। देन है आपका क्वेश्चन प्रोविजन फॉर टैक्स, वेयर डज इट अपीयर इन द बैलेंस शीट? प्रोविजन फॉर टैक्स, अदिति। Sir, current liability, short term provisions. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बिल्कुल ठीक है बच्चे। इट इज करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बट व्हाट अबाउट प्रपोज्ड डिविडेंड?
प्रपोज्ड डिविडेंड, यस तमन्ना। So main had contingent liability and commitments, and sub had contingent liability. Very good, बच्चे. It is contingent liabilities and commitments main head, then sub head is contingent liabilities. Very good, Tamanna. Then is trade investments appear in the company's balance sheet. Where does it appear in the balance sheet? Trade investments. अब ये होती क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है ना वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट जो हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर द वी कैन से एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए पैसे, उसके शेयर परचेज कर लिए, उसकी डिबेंचर्स परचेज कर लिए, वेयर इट शुड अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। सही है। Main had non-current assets, sub had non-current investment. बिल्कुल ठीक है, नॉन करंट। Main had non-current assets. यस, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सही है बेटा। देन इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। पहले तो हमने किया प्रपोज्ड डिविडेंड, नाउ इट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये कहाँ आएगा? अनक्लेम्ड। ये पॉइंट सारे किए हुए हैं, मैं नया कुछ नहीं करवा रहा हूँ, हमने पॉइंट किए हुए हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, क्वेश्चन तो कोई हो रहा है? हाँ जी, यस, मैं क्या पूछ रहा था बेटा? अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है? कहाँ आएगा ये? प्रभजोत। So current liabilities main head, other current liabilities subhead. बिल्कुल ठीक है, करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी, इट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। देन इज which of the following items is shown under the current liabilities while preparing balance sheet of a company? Which of the following items is shown as a current liability? Item मैं बोल रहा हूँ, security premium reserve, debentures, livestock, none of the above. चाहत। Sir, none of the above. रीजन बाकी बताइए। ये जो ऑप्शन होती है ना बड़ी सौखी सी होती है ना, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये कहना बड़ा इजी है। इसके लिए आपको तीनों पहले ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ आएगा? चाहे ये ऑप्शन सी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कहाँ आएगा? Non-current liabilities, other liabilities. नहीं बच्चे, इट विल बी देयर इन रिजर्व सरप्लस अंडर शेयर होल्डर्स फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सेकंड बात डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कहाँ आएंगे? चाहे Long term borrowings, non-current liabilities. बिल्कुल ठीक है। लाइफ स्टॉक कहाँ आएगा? लाइफ स्टॉक Inventories. आप 2 मिनट लो, चाहे कोई बात नहीं। Inventories. चाहे तब देखो, आपका आंसर ठीक था, आपने आंसर दिया ना नन ऑफ द अबव, वो आपका आंसर ठीक था, लेकिन 3 ऑप्शन में से बाकी 2 आपकी गलत थी। आप देखिए, तो लगता है तुक्का सा लग गया। लाइफ स्टॉक जो है दैट इज नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक जो कैटल वगैरह हमारे पास है, बच्चा कामा जो है ना हमारे पास, जिनका इस चीज का काम हो, सपोज कि किसी की डेयरी है, उसका लाइफ स्टॉक क्या रहेगा? उसके पास जो मज्जे गावे हैं वो रहेगा, है ना। जो उसके पास कैटल की फॉर्म में कुछ भी हो, वो उसका लाइफ स्टॉक है। इट इज नॉन करंट एसेट चाहत, एंड बिकॉज वी कैन टच दोस, इट इज टेंजिबल एसेट अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चाहत आपका आंसर ठीक था, अगर तो वहां आ गया सिर्फ ऑप्शन दे दो फिर तो पूरा 1 मार्क मिल जाएगा चाहत आपको। अगर कहीं वहां उसने क्या जस्टिफाई कर दो फिर मार्क्स नहीं मिलने बेटा, चाहे ठीक भी होगा। चाहत आई होप आई एम क्लियर।
चाहत? Yes, sir. हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है आपका which of the following items is shown under the head non current assets? Under the head non current assets मैं items बोल रहा हूँ। Items are underwriting commission, current investments, inventory and patents. अब यहाँ कोई all of the above या none of the above नहीं है। Under the head non current assets संयम पेटेंट्स बिल्कुल ठीक है। पेटेंट्स जो है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है अंडर नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद वो आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज? हेडिंग करंट लायबिलिटीज द ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व फंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व फंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड लाइवस्टॉक। कनब सर इन्वेस्टमेंट्स। देखिए करंट लायबिलिटीज बात हो रही है, करंट लायबिलिटीज की। इन्वेस्टमेंट तो लायबिलिटी ही नहीं है, करंट नॉन करंट की बात ही बाद में आ रही है, तो है ही एसेट हमारी। तो ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट, रिजर्व फंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड लाइवस्टॉक। तमन्ना सर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड बिल्कुल अभी हमने बात करी है, कल भी बात हुई थी मेरे ख्याल से, इससे पहले अभी भी बात हुई है। अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो अदर करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में आता है। देन है आपका while preparing balance sheet of a company, security premium reserve is shown under dash main head and dash sub head। security premium reserve बहुत इजी है, ये तो ज़्यादा हैंड अप होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। 6, 7, 8 में है अभी। और कोई जिसने आज कोई आंसर नहीं दिया वो हैंड रेज करे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिसने अभी आज कोई हैंड आंसर नहीं दिया ना, आज गलत सही की बात नहीं मैं कर रहा, वो हैंड रेज करे। अरे फिर वही आप हैंड रेज कर जिन्होंने आंसर दिया हुआ है, और कोई नहीं है? यस तानिया। Main head shareholders fund, subhead reserves and surplus। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो ये वही बन गया आपका, रिजर्व एंड सरप्लस बन गया। इट इज आल्सो नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम आल्सो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी, ठीक है। सो चैप्टर आपका ओवर है, जो सामने रख के रहते हैं वो कर लेना आप। मंडे से हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। आपका डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे।